हेलो एवरीबॉडी। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी सिंगापुर एयरलाइंस के रिसेंटली पोस्टेड कैबिन क्रू वैकेंसी के बारे में। ये इंटरव्यू कंडक्ट होने वाला है न्यू दिल्ली में। इसी से रिलेटेड इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे भरना है और उनके वेबसाइट पे कुछ चीज़ें जो लिखी हुई हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस या इंटरप्रेट करने की कोशिश करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रचना एंड वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि अगर आप एक मेल कैबिन क्रू एस्पिरेंट है तो भी आप एलिजिबल है इसमें अप्लाई करने के लिए। अगर आप एक फीमेल कैबिन क्रू एस्पिरेंट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक फ्रेशर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट है तब तो आप अप्लाई कर ही सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की टू बिकम अ कैबिन क्रू इन सिंगापुर एयरलाइंस। मैंने इनका ऑफिशियल करियर्स वेब पेज खोल लिया है अपने लैपटॉप पे। द फर्स्ट थिंग इज मिनिमम एज ऑफ 18 ईयर्स ओल्ड ड्यू टू लेजिस्लेटिव requirements. So age criteria 18 है whether you're a male or whether you're a female. ठीक है, next है pleasing personality and service oriented. You all know or we all know that Singapore Airlines is an airline which pays a lot of attention to service. It's a service oriented airline. So if you are somebody who is passionate about customer service, then you are eligible to apply for this. Next is fluent in English with good communication skills for servicing of international customers. Of course, it's an international airline, so you will have people from all over the world traveling with you. So fluency in English is important. और कोई लैंग्वेज का रिक्वायरमेंट इन्होंने नहीं लिखा है, फ्लुएंसी इन हिंदी और फ्लुएंसी इन एनी अदर लैंग्वेज. इट इज़ एन एसेट इफ़ यू नो अनदर लैंग्वेज, बट कुछ और नहीं लिखा है. सो फॉर समबडी हु इज़ नॉट वेरी फ्लुएंट विद टॉकिंग इन हिंदी, दिस इज़ अ गुड चांस फॉर यू टू अप्लाई. ओनली फ्लुएंसी इन इंग्लिश इज रिटन. ठीक है, नेक्स्ट. Minimum height requirement of at least 1.58 meters for females, 1.65 meters for males, in order to carry out safety and emergency procedures on board. So this is very clear. For females it is 1.58, for males it is 1.65 meters. ठीक है, to carry out safety and emergency procedures on board. This is for a simple reason कि कुछ एयरक्राफ्ट्स में कुछ इमरजेंसी इक्विपमेंट्स होते हैं वो एक हाइट पे रखे जाते हैं, तो इनका वही रीज़न है ये हाइट क्राइटेरिया का. दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू इन दिस. ठीक है, नेक्स्ट. पोजेस अ बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी. सो ये थोड़ा मुझे डाइसी लगा कि इफ़ यू आर 18 years old, हाउ कैन यू पोजेस अ बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी. But if you're 18 years old and you're fulfilling the requirement of 10+2, I would encourage you to apply. However, इसमें possess a bachelor's degree लिखा है from a recognized university. So I'm not really sure कि ये कैसे दोनों चीज़ें coincide करेंगी. But if you're 18 and you're interested to apply, I would suggest you to apply. That's all I can say because ये दो चीज़ें लिखी हुई है. So let's see what happens when you apply. उसके बाद है willingness to relocate to Singapore. So of course if you get selected, if you get shortlisted, you will be based in Singapore. ठीक है, so you should have the willingness to relocate to Singapore. Next is willingness and commitment to serve a compulsory service bond. So as you know, I told you it is a service oriented airline and it is one of the best airlines in the world. So they focus a lot on customer service. They are actually they carry the brand image of customer service, you can say, worldwide. So if you do not have that passion from within, then you are not very eligible to apply for this position. That's why they have emphasized on this that you should really have the passion to provide customer service. ठीक है, next है former SIA cabin crew are welcome to apply. So if you are a former Singapore Airlines crew, of course you are welcome to apply. That's what it means. ठीक है. Now the next thing that is mentioned is successful candidates must be able to commence employment with us within 3 months from the date of application. So remember कि जब भी आप application कर रहे हैं उसकी 3 months में you should be willing to take up the job role if you get shortlisted. ठीक है, so whenever you are filling out the application, remember कि उसके 3 महीने में अगर आप कहीं already you are working somewhere, you are employed somewhere, so you should be able to finish off your employment with the previous organization within 3 months of application here. That's what they mean. ठीक है. The next thing is Singapore Airlines conducts direct recruitment and does not engage any third party agencies and companies for our cabin crew recruitment.
This is self-understood. I'm not going to read the whole para. Do not pay money to anybody who says that they are representing a certain airline, because there is no airline that charges money for interviews. ठीक है? So go directly whenever कोई भी airline में आप apply कर रहे हो, go to the official careers web page of that airline and then apply. अब application details की अगर हम बात करें, so you have to send your online application by 17 December 2023. So अभी बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास है. The last day to apply is 17 December 2023. आपको एक ऑनलाइन एप्लीकेशन भेजना पड़ेगा. अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो उनके वेबसाइट में ये लिखा है कि यू विल बी, इफ़ यू गेट शॉर्टलिस्टेड आफ्टर सेंडिंग योर ऑनलाइन एप्लीकेशन, यू विल बी कॉल्ड for a video interview with them. If you get shortlisted in that video interview, then you will be called the final interview, which will be held in New Delhi in December. ठीक है? तो as of now ये है इनका process. First you apply online. If you get shortlisted, then you will be invited. You will be sent a link from them to attend a video interview with them. Video interview में अगर आप shortlist होते हो तो you will be invited to come to Delhi for the final interview with them. ठीक है? ओके, अब हम बात करते हैं कि आपको अप्लाई कहाँ करना है. जब भी आप जिस भी एयरलाइन में अप्लाई करते हैं, आई ऑलवेज से अप्लाई इन द ऑफिशियल करियर्स वेब पेज. ठीक है? सो द फर्स्ट थिंग दैट यू विल डू इज गो ऑन गूगल. When you go on Google, just type Singapore Airline Careers. अब आपको एक ऐसा पेज दिखेगा. जब आपको ये पेज दिखे तो इसी में नीचे स्क्रॉल करते जाइएगा तो आपको बहुत सारे कंट्रीज के नाम दिखेंगे. तो आपको ऑब्वियसली चूज करना है इंडिया. जब आप इंडिया पे क्लिक करते हो तो आपको एक ऐसा पेज ओपन होगा. तो टॉप राइट पे जो ब्लू कलर का अप्लाई नाउ ऑप्शन है, आप उस पर क्लिक कीजिए. जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो इट विल आस्क यू फॉर योर ईमेल एंड पासवर्ड. अगर आप एक न्यू यूजर है तो आप क्रिएट अकाउंट कर सकते हैं. अगर आप एक ओल्ड यूजर है तो आप अपना ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डाल के आपको एप्लीकेशन का पूरा फॉर्म दिख जाएगा. अब इसमें जो है मुझे दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 अलग अलग सेक्शंस. ठीक है? वन इज to put your documents, then you have your profile information, then you have your previous employment details, education, military service, certificates and licenses, on job specific information. So my documents में you just have to upload your CV and your cover letter. ठीक है? And in my profile information में it is just your basic details. इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप fill नहीं कर सकते. It's your name, passport number, nationality, address, फोन नंबर, पोस्टल कोड, ये सारी चीजें हैं. ठीक है? इसके बाद प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट में इफ यू वर एम्प्लॉयड बिफोर, वेदर एविएशन में और वेदर इन एनी अदर फील्ड, यू कैन मेंशन दोज डिटेल्स अबाउट यू इन द प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट सेक्शन. इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको एविएशन से रिलेटेड ही अपना एक्सपीरियंस दिखाना है. प्लीज शो वट एवर एक्सपीरियंस यू हैव, यू कैन राइट इट. अब एजुकेशन में यू कैन एड वट एवर यू नीड टू एड अबाउट योर एजुकेशन. सो इसमें अगर मैं डिटेल्स में जाऊं, डिटेल्स में मोड ऑफ स्टडी क्या था आपका, डिस्टेंस लर्निंग था, फुल टाइम था, पार्ट टाइम था, ये सारी चीजें भी आपको इसमें डिटेल्स में लिखनी है. दे आर वेरी डिटेल ओरिएंटेड. ठीक है? तो ये सारी चीजें लेकर बैठना आप, अपने मार्कशीट्स, अपने पासपोर्ट डिटेल्स, अपना सीवी, अपने बाकी जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, सब सारी चीजें लेकर बैठना. बिकॉज they are a detail oriented, इनका application form होता है. तो you have to have everything ready so you can fill it up. तो इनका जो आपने कौन से सब्जेक्ट में पढ़ाई करी है, स्टार्ट डेट, एंड डेट, ये सारी चीजें आपको लिखनी है. ठीक है? नेक्स्ट जो है मिलिट्री सर्विस. इफ यू वर अ पार्ट ऑफ द मिलिट्री सर्विस इन योर कंट्री, यू कैन मेंशन दैट एज वेल. नेक्स्ट है सर्टिफिकेट्स एंड लाइसेंसेज. अगर आप ऐड करना चाहते हो तो आप अपने सर्टिफिकेट्स एंड लाइसेंसेज ऐड कर सकते हो. एंड जिस कंट्री में आपको लाइसेंस मिला है वो भी आप मेंशन कर सकते हो. ठीक है? जॉब स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन. तो अगर आप जॉब स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन में देखो तो इट इज योर करंटली मंथली सैलरी दैट यू वुड नीड इन सिंगापुर डॉलर्स. दे आर आस्किंग यू कि आप कितना एक्सपेक्टेशन रखते हो सैलरी से अगर आपको जॉब मिल जाती है तो. अब दूसरी जो क्वेश्चन है, प्लीज स्टेट ऑल योर ओ लेवल्स / SPM और इक्विवेलेंट सब्जेक्ट्स टेकन एंड ग्रेड्स ऑब्टेन्ड इन द फील्ड बिलो. तो ये ओ लेवल जो है, इन माय अंडरस्टैंडिंग इट इज
जनरली एसोसिएटेड टू यूके लेवल ऑफ एजुकेशन, ठीक है। ओ लेवल्स, ए लेवल्स, ये सारे यूके बेस्ड एजुकेशन लेवल्स होते हैं। तो आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आप ये जब फिल कर रहे हो, बिकॉज वी डोंट हैव ओ लेवल्स एंड ए लेवल्स इन आवर कंट्री, सो ओ लेवल इज बेसिकली 10th standard, which happens between the age of 14 to 16 years, and A levels is 12th standard, which happens between the age of 16 to 18 years. तो आप अपने subjects and grades लिख सकते हो which you had in 10th standard and in 12th standard in this. इसके अलावा in my understanding यही हो सकता है, because हमारे पास O level A level education तो हम लोग हमारे है ही नहीं एजुकेशन सिस्टम में. I can only suggest you because मैंने ये फॉर्म नहीं भरा है पहले, बट मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये यही होना चाहिए. सो यू कैन ऑल्सो गूगल एंड चेक फॉर इट इफ यूड लाइक. Next is, do you require a work pass in Singapore? Please indicate your current location. Are you currently vaccinated? When will you be able to commence employment? You can fill in all these details by yourself. ये O level का जो है ये एक अलग कुछ क्वेश्चन होगा फॉर श्योर. फॉर मोस्ट पीपल अलग नया क्वेश्चन हो सकता है. बाकी सारी चीज़ें मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डिफिकल्टी होगी इसमें. तो ये सारे सेक्शंस है. अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज ऑल्सो, हो सकता है मेरे पास सारा इन्फॉर्मेशन ना हो, बट जितना मुझे समझ में आ रहा होगा, अगर मुझे आता होगा तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई जरूर करूंगी और बोलूंगी कि मुझे इसका सही जवाब पता है या नहीं पता है. आज के इस वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को. फॉर मोर फ्यूचर कैबिन क्रू एंड इंटरव्यू रिलेटेड जॉब कंटेंट के लिए स्टे ट्यून्ड.